चलिए अपने मॉडर्न हिस्ट्री के घटना चक्र को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा अगला टॉपिक है ये है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरी पार्ट पे, उसके बाद चलेंगे इसे क्वेश्चन वाले पार्ट पे। ठीक है, बोल रहा है मित्र मेला वॉज ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय विनायक दामोदर सावरकर इन 1899 AD। ठीक है, इट वाज लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904। Beside महाराष्ट्र में हुआ था। Its branch were open in मध्य प्रदेश and कर्नाटक। On 27 September 1925, हम्म, राष्ट्रीय सम्मान सेवक संघ, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान सेवक संघ was founded by केशव बलिराम हेगेद्वार। ठीक है, its headquarter is located at नागपुर, महाराष्ट्र। जितेंद्र नाथ मुखर्जी 1879 to 1915 was a Bengali revolutionary. It was hardened follower of Vinayak and Arvind Ghosh. He was an active member in revolutionary committees such as Yugantha Anushillam Samiti, Gada Party, etc. He was also known as Bhaga Jatin. ठीक है, व्यायाम मंडल was founded by Chapekar brothers. ठीक है, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, विष्णु हरि चापेकर in 1896 to 97 at Pune. It was founded with clear political intention. In June 1897, Chapekar brother killed president of Pune Plague Committee, Rand and lieutenant arrest. ठीक है, Damodar Hari Chapekar was hanged in this crime. They were arrested on the information given by David brothers. British charged Tilak along with एक सेकंड क्या other Brahmins of Pune for killing Rand, but they got no evidence to prove that. ठीक है, in July 1897, Tilak was charged with sedition as per section 124A of IPC and was sentenced for 18 months. It made Tilak an all India leader and people gave him the title of Lokman. In December 1909, Anant Lakshman Kanhare, a member of Karbe group, shot and killed district collector of Nasik, Jackson. यहाँ पे नाम क्या था? जैक्सन। कन्हड़े, कृष्ण गोपाल कार्बे and विनायक देश पांडे were hanged in Jackson murder case. ठीक है, वीडी सावरकर was arrested in London and brought to Nasik with some other people who were charged in Nasik conspiracy, was sentenced life imprisonment. The place of Bara robbery 1908 was located in East Bengal. This group which executed Bara robbery was led by Pulin Bihari Das on April 30th. 1908, Khudiram Bose and Prafulla Chaki threw a bomb at King's Court, but he escaped, and unfortunately, daughter of Mr. Candy, who was sympathizer of national movements, were killed. Prafulla Chaki committed suicide, and Khudiram Bose was caught and hanged. ठीक है, खुदराम बोस वाज कैच एंड हैंड। नेक्स्ट चलते हैं। इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908, अरविंद घोष, हिज ब्रदर वरिंद्र घोष, ऑल टुगेदर 39 पर्सन वेर अरेस्टेड फॉर बियरिंग इलीगल वेपन। ठीक है, इलीगल वेपन रखने के कारण 39 पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में। ठीक है, 19 people were sentenced, but Arvind Ghosh was released. Chitranjan Das
putting a lot of effort, saved Arvind Ghosh, Kanhaiya Lal Dutt, and Satyendra Bose and killed Narendra Joshi, a government witness in Alipur conspiracy case. ठीक है, in the prison. They were sentenced to death for operating revolutionary movements in India. A conference of young revolutionary was organized at Kanpur in October 1924, and Hindustan Republic Association was founded in that conference. ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. Its founding member were सचिंद्र सन्याल, जो प्रेसिडेंट है इसके. ठीक है, रामदास बिस्मिल, जो जोजेश चंद्र चटर्जी, and Chandrasekhar Azad. The organization executed robbery on 9 August 1925 at Kakori and looted government treasury from the train. Eastbound Saharanpur Lucknow passenger train of North Railway Lucknow Saharanpur zone. 43 revolutionaries were arrested, among which Ram Prasad Bismil, Asfaqullah Khan, Roshan Lal, and Rajendra Lihari were hanged. Chandrasekhar Azad was only member of Hindustan Republic Association who escaped. Asfaqullah Khan was first recorded Muslim to hang for a struggle of India's independence. He was sentenced to death in Kakori case, Kakori train action, and hanged on 19th December 1927 at the age of 27 in Faizabad jail, now Ayodhya jail. Famous revolutionary Ram Prasad Bismil refused to drink milk when it was offered to him 2 days beforehand. He said, "I will drink only my mother milk." ठीक है, यार ये क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA was founded at Firoz Shah Kotala, New Delhi in 1928 by Chandrasekhar Azad, Bhagat Singh, Sukhdev and others. Two members of this organization, Bhagat Singh and Bakuteshwar Dutt, 8 April 1929, threw a bomb at Central Assembly after After this incident, 18 members of Hindustan Socialist Republican Association were arrested and charged with case in Lahore conspiracy. ठीक है, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged and strictly cremated on the bank of river Satluj, Firozpur. एक second. Firozpur on 23rd March 1931. ठीक है, Chittagaon Armory raid was an attempt to raid the armory of the police and auxiliary forces at Chittagaon in Bengal. It was organized by Surya Sen, who was also famous by the name of Master Da. The Indian Republican Army was established by Surya Sen Bengal with the cooperation of mainly Ganesh Ghosh, Lokanath Nirmal Sen, Ambika Chakravarti, और नरेश रॉय, कल्पना दत्त एंड आनंद गुप्ता. उसके बाद क्या है, त्रेबल etc. On 18th April 1930, Suri Sen looted the Chittagaon Armory. A struggle took place on 22 April 1930 between government force and IRA, in which 80 soldiers and 20 revolutionaries were killed. On 16th February 1933, Surya Sen was arrested and faced legal proceedings and ultimately hanged on 12 January
1934. ठीक है। On 14 June 1929, Jatin was arrested on such type of charges under the supplementary Lahore conspiracy case. He started a hunger strike for jail reforms, and due to this long hunger strike, which lasted 63 days, Jatin died on 13th September 1929. The theory of passive resistance was formulated by Arvind Ghosh in his newspaper Vande Mataram. Subhash Chandra Bose founded Forward Bloc 3rd May 1939 after resigning from Congress. In December 1931, Shanti Ghosh and Suniti Chaudhary, two school students, killed district magistrate Bina Das, shot governor at point blank at a convention in 1932. Bhagat Singh once said, criticism and independent things are two indispensable qualities of a revolutionary. ठीक है। चलिए, तो ये रहा हम सबका थ्योरी वाला पार्ट। अब चलेंगे हम सब क्वेश्चन वाले पार्ट पे। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी था, वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु इज एसोसिएटेड विद अभिनव भारत? तो बीडी सावरकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड मित्र मेला यूनियन? जो अभिनव भारत था उसका पुराना नाम मित्र मेला था। ठीक है। तो कौन स्टार्ट किया था? तो बीडी सावरकर। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर। आइए, द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वाज सेटअप इन 1905। कहाँ पर हुआ था सेटअप? तो महाराष्ट्र वाले इलाके में। ठीक है। नासिक में। आइए, पांचवा क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज अभिनव भारत? ये अभिनव भारत जो सोसाइटी था किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वीडी सावरकर वॉच। कौन है? तो अभिनव भारत। ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वॉच फाउंडेड बाय। तो वीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? लंदन में। तो वीडी सावरकर। ठीक है। लंदन में भी वीडी सावरकर। लगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 नंबर बोल रहा है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट वीडी सावरकर? ठीक है। पहला क्या बोल रहा है? ही फाउंडेड अभिनव भारत और रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सही है, 1 नंबर। चलिए, दूसरा क्या है? इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रॉट द बायोग्राफी ऑफ मजरी। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है? ही ऑल्सो ऑथर्ड द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 which provide a nationalist view of the revolt of 1857। हाँ, ब्रिटिश सावरकर के द्वारा लिखा गया है ये। फोर्थ क्या बोल रहा है? He jumped into the sea from the sailing ship in order to escape British captivity। चलिए, ये भी सही है। तो हमारा चारों का चारों सही है। ठीक है। चलिए, तो चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन विच ईयर द राष्ट्रीय सॉरी
In which year the राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ was founded in हैदवार? तो ये 1925 में हुआ था, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, युगांधर पार्टी वॉज लेड बाय, युगांतर किसके द्वारा लीड किया गया था? तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा, जिसको बागा जतिन बोलते हैं हम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? तो पीएम मित्रा, ठीक है। अनुशीलन समिति को, एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोल रहा है, हु एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913? कौन थे वो? सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखे जरा। बोल रहा है, हु एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913 एडी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार 63 में हुआ है, एक बार 67 में हुआ है, ठीक है, बीपीएससी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्टिविटीज ऑफ बरिंद्र घोष हैड गिवन बर्थ ऑफ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज अनुशीलन समिति, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड, इससे एसोसिएटेड थे वो, तो अनुशीलन समिति से, ठीक है। द अनुशीलन समिति वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे ये एसोसिएटेड है? तो अनुशीलन समिति से, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन डिड बाल गंगाधर तिलक गेट द टाइटल लोकमान? कब मिला था उनको? तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के समय, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बारह डेकोटी was the first major venture of the revolutionary terrorists of the freedom movements in? तो ईस्ट बंगाल में था, ठीक है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, when did the attempt of murder of King's Ford was made at मुजफ्फरपुर? तो 1908 में, जिसमें प्रफुल्ला चाकी खुदीराम बोस थे, ठीक है। चलिए 21 हो गया, 22 ना। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्स फॉर्ड? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। 23 मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस 1908 एसोसिएटेड विथ? तो प्रफुल्ला चाकी खुदीराम बोस, प्रफुल्ला चाकी केवल ऑप्शन में है, तो ये होगा, ठीक है। 24 क्या बोल रहा है, अरविंदो घोष वॉज ब्रिलियंटली डिफाइंड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी वॉज, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी कॉज बाय, तो क्या था वो? चित्तरंजन दास जी के द्वारा बचा लिया गया इनको, ठीक है। 25 नंबर क्या है, विच ईयर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज सेटअप? कब हुआ था? तो 1924 में, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फाउंडेड एट? कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर वाले इलाके में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जरा। 27 क्या बोल रहा है, Who among the following was not the member of हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? कौन इसमें से मेंबर नहीं है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का? तो शिव वर्मा जी नहीं थे, ठीक है। चलिए 28 नंबर देखे क्या बोल रहा है, Who amongst the following revolutionaries refused to drink the milk
on the eve of his execution and said, now I shall take my mother milk only. ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु पेंट द फॉलोइंग लाइन्स, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने ये लिखा था, बोला था? तो ये बिस्मिल जी ने बोला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते। नंबर क्वेश्चन क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ पॉपुलर सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो कौन है ये? गफ्फार करके होंगे कोई। नहीं, इसमें नहीं दे रखा। एक सेकेंड, इसमें दे रखा होगा अभी जस्ट खाली। ये ये है जिसमें विलेज पटना। हाँ देखिए, ये है ना, सैयद शाह मोहम्मद हसन। ये इनके ओरिजिनल ऑथर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नन ऑफ द एबव है ना इसमें, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग हैंड इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस बाय इंग्लिश गवर्नमेंट? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर क्या बोल रहा है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज टुक प्लेस इन विच ईयर? काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुआ था? 1925 में। एक सेकंड, 1925 में। 33 क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी एस्केप फ्रॉम द काकोरी केस? तो चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे पुलिस के कब्जे से। 34 नंबर क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सोल रेवोल्यूशनरी ऑफ काकोरी कॉन्स्पिरेसी who escaped from arrest by police? तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोल रहा था 35 नंबर, विच रेवोल्यूशनरी वेयर हैंग्ड इन काकोई ट्रेन रॉबरी के? तो राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाक उल्ला खां। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी इंसिडेंट? तो सूर्य सेन जो मास्टरदा है वो नहीं एसोसिएटेड थे काकोरी इंसिडेंट से। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी? तो भगत सिंह नहीं एसोसिएटेड थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? तो बाबा भगत नारायण। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑफ 1924? तो एम अंसारी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दारो देवर बेहसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। और सेड बाई, ये किनके द्वारा बोला गया था? वाजिद अली शाह के द्वारा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड बाय? तो चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह थ्रो अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली अलोंग विथ के साथ मिलकर किए किए थे? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। 43 नंबर क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1928? Who among the following threw a bomb in Central Legislative Assembly on April 8, 1929 to make the deep British government here?
तो वो थे ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, एक और चार, किसमें एक और चार? डी नंबर में। चलो, वन ऑफ द फाउंडर लीडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी वॉज, तो भगत सिंह थे। ठीक है, 46 नंबर क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग टेंस द नेम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड बाय सचेंद्र नाथ सन्याल टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसका एस्टैब्लिश सचेंद्र नाथ सन्याल किए थे, उनका नाम चेंज कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। ठीक है, 47 नंबर, इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश, कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली वाले इलाके में हुआ था। ठीक है, चलिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन? तो चंद्रशेखर आजाद। किधर चंद्रशेखर आजाद? नहीं, इसमें आंसर नहीं दे रखा है। ठीक है, चलिए, हाउ रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड बाय द ब्रिटिश? कैसे मारा गया उनको? बाय बुलेट काउंटर एनकाउंटर्स। ठीक है, 50 नंबर क्या बोल रहा है? हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? तो भगत सिंह। हु गेव द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। ठीक है, द स्लोगन लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ? इससे एसोसिएटेड है सरदार भगत सिंह। हाउ ओल्ड वॉज भगत सिंह व्हेन ही थ्रो अ बम इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? तो वो 21 साल से कुछ कम थे। ठीक है, चलिए, 53 हो गया। 54 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेयर एग्जीक्यूटेड ऑन, कब इनको फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। ठीक है, भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, भगत सिंह मेमोरियल कहाँ सिचुएटेड है? फिरोजपुर में सिचुएटेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वॉज नॉट हैंग फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी में भी इनको हैंग नहीं किया गया था, तो बटुकेश्वर दत्त को। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर सेंटेंस टू डेथ इन, तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, 58, भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विथ टू ऑफ हिज comrades on 23rd March 1931, who were those two? भगत सिंह के साथ दो उनके कॉमरेड को भी फांसी दी गई थी, तो वो दोनों का नाम क्या था? तो राजगुरु एवं सुखदेव। ठीक है, 59, लाहौर कॉन्स्पिरेसी वॉज रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ, लाहौर कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट निकला किनको हैंग करके? तो एक तो भगत सिंह है, दूसरा सुखदेव है, तीसरा राजगुरु है। ठीक, 345, 345 डी नंबर में है। चलिए, 60 नंबर क्या बोल रहा है? नेम द फर्स्ट रिकॉर्ड मुस्लिम हु वाज हैंग फॉर इंडियन फ्रीडम? तो अशफाक उल्ला खां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्हीं के द्वारा बोला गया था। ठीक है, चलिए, 61 नंबर क्या है? गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ सम केस, सिलेक्ट देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग द कोड गिवन एट द एंड। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, काकोरी के सॉरी लाहौर केस, काकोरी केस, मेरठ केस, कानपुर केस, तो कौन कब कब हुआ था उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका लाहौर केस होता है। ठीक है, उसके बाद लाहौर केस जो है, ये दो लाहौर केस है, और सेकेंड लाहौर केस, ये फर्स्ट लाहौर केस 1916 में होता है, और सेकेंड 1930 में होता है। ठीक है, कानपुर जो है, जो चौथा नंबर पे जो है कानपुर, ये होता है आपका 1924 में। ठीक है, उसके बाद काकोरी 1925 में होगा। ठीक है, उसके बाद मेरठ जो है वो 1929 में होता है। ठीक है, तो सी नंबर है आंसर।
बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस जो है 1910 में होता है। ठीक है, उसके बाद विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914 में होता है। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 2 बार होता है, एक 16 में एक 20 में। ठीक है, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फेज में भी एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी होता है, एक सेकेंड रेवोल्यूशनरी फेज में भी होता है। ठीक है, लेकिन का कोई केस है तो 24 में नहीं 25 में होता है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। एक सेकेंड, इसमें आप ये कर लीजिए, ये गलत है, ये 1925। ठीक है, ये दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आमिर चंद। ठीक है, उसके बाद ये सही है आपका। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अशफाक उल्ला खां को मिला था काफी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 2 हुआ था, एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भगत सिंह जो किए थे वो, दूसरा ये जतिन दास के द्वारा। ठीक है, लेकिन तीसरा नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में रास बिहारी बोस नहीं थे। ठीक है, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में थे बिहारी बोस, ये गलत है। ये इसमें 64 में क्या करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। मैच करना है। ठीक है, तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस अभी जस्ट ऊपर हम सब देखे हैं, ये आपका जतिन नाथ मुखर्जी है। ठीक है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 2 बार हुआ है, तो राजगुरु सुखदेव ये भगत सिंह वाला है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है उसमें आपका मास्टर अमित चंद जो है ये है, और लाहौर अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस ये आपका अरविंदो घोष है। ठीक है, एक ही होता है अलीपुर में, वही जो आर्मी इलीगल आर्म्स वगैरह रखता है ना, उसी पे पकड़ लेता है पुलिस। ठीक है, चलिए 65 क्या बोल रहा है, मुजफ्फरपुर अहमद 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुजफ्फर अहमद शाह डांगे शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता वेयर जेल फॉर विच कॉन्स्पिरेसी। तो कानपुर बोल से कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज फेमस चिटगांव आर्मरी रेड। तो सूर्य सेन। हु इज रिलेटेड टू चिटगांव आर्मरी रेड। तो सूर्य सेन। ठीक है, द चिटगांव आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाय सूर्य सेन। Which of the following was associated with Chittagong Armory Raid? सूर्य सेन। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्टरी ऑफ लास्ट ईयर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज खुदीराम बोस। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैच करना है। तो अभिनव भारत, अभिनव भारत किससे है, तो वीडी सावरकर जी से है। ठीक है, वीडी सावरकर जी से। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष से है। हाँ, उसका बाद गदर पार्टी लाला हरदयाल से है। ठीक है, और स्वराज पार्टी सीआर दास से है, सीआर दास से जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ये दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 72, इसमें भी मैच करना है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो।
ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में फाउंडर दे रखा है, ठीक है। अभिनव भारत तो वीडी सावरकर, ठीक है। और मित्र मेला भी वीडी सावरकर ही है। अच्छा, ये अभिनव भारत जीडी सावरकर है, मित्र मेला वीडी सावरकर है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन रिपब्लिक आर्मी तो सन्याल थे, ठीक है। ये एक नहीं सेन थे, इसका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थे, वो थे सन्याल, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है। चिटगांव आर्मी रेड सूर्य सेन किए थे, ठीक है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी तो राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। और उसके बाद गदर पार्टी आपका ये लाला हरदयाल है, ठीक है। बचा उसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी तो ये जतिन दास है, ठीक है। ये मेरा ही जरा चिटगांव आर्मी रेड सूर्य सेन काकोरी रा, राम प्रसाद बिस्मिल लाहौर जतिन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल, देखिए सही है सब। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट चार्ज वाज जतिन दास अरेस्टेड, किस चार्ज में जतिन दास को अरेस्टेड किया गया था, द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक तो जतिन दास ने मर गया था। तो वो जेल में रिफॉर्म करवाने के लिए हंगर स्ट्राइक पर गया था, उसके बाद उनकी 65 डेज बाद मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द एंड ऑफ लाइफ्स ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। जतिन दास तो हंगर स्ट्राइक से मरे थे, ठीक है। तो एक सेकेंड, जतिन दास हंगर स्ट्राइक से मरे थे। चंद्रशेखर आजाद एनकाउंटर में मरे थे, ठीक है। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और कल्पना दत्त को इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। चलिए आइए मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन इन लिस्ट 1 दे रखा है, लिस्ट 2 दे रखा है। चिटगांव आर्मरी रेड तो सूर्य सेन जी ने किया था, सूर्य सेन इसमें है नहीं, तो कल्पना दत्त होना चाहिए फिर उनकी शिष्य। हाँ, चिटगांव आर्मी रेड कल्पना दत्त सूर्य सेन की ये थी, शिष्य थी, ठीक है। अभिनव भारत बीडी सावरकर, ठीक है। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष, ठीक है। और कुका मूवमेंट टुकरूराम सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, अंडर हुज चेयरमैनशिप अ कमिटी वाज फॉर्म्ड टू डिफेंड द एक्यूज्ड इन काकोरी केस, ठीक है। तो वो गोविंद बल्लभ पंत के वजह से कमेटी बनाई गई थी, काकोरी केस में जो जो एक्यूज थे वो उनको डिफेंड करने के लिए, ठीक है। ये 78 79 वापस से मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, ठीक है। ए बोल रहा है रिवोल्ट, एक लिस्ट 1 में एसोसिएशन दे रखा है, लिस्ट 2 में उसका फाउंडर दे रखा है, ठीक है। जो रिवोल्ट ग्रुप है वो आपका बनाया गया था सूर्य सेन के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये बनाया गया था आपका राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ठीक है। और
ये पंजाब नौजवान नौजवान भारत सभा जो है लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, चलिए मिला लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा फॉर्म्ड इन 1926 एडी। तो अर्ली मेंबर कौन नहीं थे, तो ये अंबिका चक्रवर्ती जो थे वो नहीं थे। ठीक है, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट दोज engaged in revolutionary activities using the code given below the list। ठीक है, पहला दे रखा है अभिनव भारत, ठीक है, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। ये जो न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट था ना, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति जो था ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था केवल। ठीक है, तो ये ओनली 1 और 2 हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस। तो अरविंदो घोष ने बोला था। ठीक है, वंदे मातरम न्यूज़पेपर में। 83 नंबर में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, सही है। भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये भी सही है। ठीक है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वाज हैंग्ड इन गोरखपुर जेल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दे दी गई थी गोरखपुर जेल में। 85 नंबर क्या बोल रहा है, इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द मेन एक्यूज्ड राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, तो गोरखपुर में। ठीक है, 86 नंबर क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वाज हैंग्ड, गोरखपुर में। हु अमंग द revolutionary leader attempt to assassinate Charles Taggart, the hated police commissioner of Calcutta। तो गोपीनाथ शाह ने। ठीक है, 38 नंबर क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फीमेल revolutionary fired at the English governor's chancellor while receiving her degree at the convocation। ठीक है, तो बीना दास ने। चलिए 89 नंबर क्या बोल रहा है, हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंस थ्रो आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेवोल्यूशनरीज। तो भगत सिंह ने बोला था। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द लाठी क्लब। तो बाल गंगाधर तिलक। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द एक्टिव रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो भगत सिंह एक्टिव थे, was the founder of नौजवान भारत सॉरी नौजवान भारत सभा। ठीक है, चलिए तो हम सबका ये खत्म हो रहा है ये टॉपिक। अब नेक्स्ट हम सबका जो टॉपिक है वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, इससे पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इनसाइड इंडिया पढ़ चुके हैं। अगला हम सबका आउटसाइड द इंडिया होगा, तो इसको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक